The purpose of this session whole is that one to create an awareness that we are now going to conduct a full length test series. It will be totally in sync with your final examination. The pattern will be same, and we have already covered one round of tests. In one round of tests, we have so far covered entire syllabus, 4 subjects plus 2 optional subjects, and we have given tests which are of very high standard. You might have seen in the market also what others are providing. Why? The purpose was that to make you understand and to make you prepare for the uncertainties. जो आजकल क्या है ना, JKSSB और JKPSC जैसे कल आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन इन द सुपरवाइजर एग्जाम, वो सिलेबस में कुछ देते हैं और फिर एग्जाम में कुछ और ही पूछते हैं. So if at all, God forbid, the examiner tries to trick the students by giving hard questions, you are ready for that. We have provided content also, content enrichment also, sort of model answers. We are only left with static portion, wherein we have to provide the content. The second round of test series we are providing from 28th of June this month till 6th of August. Sorry, till 5 of August. So the 5 of August we have kept a general English paper because on 6th of August you are going to appear in the general English paper. So that one paper either can be preponed to 4 or can be preponed to some other date. That's not an issue at all. So what I want to emphasize here today is that we have our input that a lot of aspirants from Aligarh Muslim University and in some other universities are preparing very hard for this examination. Okay. 1 second, Vaishali ji is वो mute करते हैं. His phone also need to be muted. Okay. Sorry for the inconvenience. So I was saying that a lot of aspirants who are in the academics, especially in Aligarh Muslim University and some other universities, are preparing hard. But you have to understand 2 things here. One, from the day one when we started this course, I have been emphasizing on only one thing, that is answer writing. A majority of the aspirants who are in the academics are not in a position, I am repeating, are not in a position to write the answers which are required for the competitive examination. Here are few aspirants, I don't want to name individually, but they might be knowing, like we have Vaishali is there, Urvi is there, then we have Sonia is there, even Sandeep Saab is there. They also know that I am from day one emphasizing them. Look, your answers should be from this way. ये academically आपको 4-5 सफ़े लिखने की जरूरत नहीं है. It should follow that coherence. It should follow that introduction हो गया, body होगी, conclusion हो गया. So no matter if somebody is reading so much, somebody is consulting so many books, exam demands from you that there should be coherence, there should be a good structure in your answer writing. That is why from day one I have emphasized that I have been saying you कि आप में से जो भी अगर कोई सिविल्स की तैयारी कर रहा है, he or she is having that slight edge. Why? क्योंकि because उनका mindset उस तरीके से सोचता है. They have been trained in such a way wherein they from the day one only are writing their answers according to the requirement of the question, which is very, very important. क्योंकि you will have a lot of time in the examination. Remember one thing, you will have a lot of time in the examination. Doing 5 questions in 3 hours means that you will have at least some 30 to 40 minutes per question. But now what you are going to now write in those 20 or 30 minutes determines that how you are going to read the question, which is very important. I have been emphasizing when I evaluate your answers, I have been saying that you have not understood the question. Question was something, you are trying to write something else. Sometimes I have given marks which maybe are 1 or 2 higher, which you are going to get there. When I am giving sometimes 70% marks or 75% marks, maybe you are not going to get more than 60 to 65% marks in the real examination.
but you have to focus. I have been saying from day one, I have been saying when I was mentoring UPSC aspirants from Physics Wala or Byju's IS, when I was working with them as a mentor, or when I am talking to young aspirants from KS and all, I have been saying them again and again. In mock tests, whatever marks you are getting does not matter at all. But what matters is that what is the other person writing in your feedback, which is very important. वो आपको फीडबैक में क्या बोल रहा है, उस पे आपको ध्यान देना है. इफ ही सेइंग द बॉडी बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ, तो वर्क ऑन दैट. इफ ही सेइंग दैट फ्लो चार्ट्स का कमी है, इट इज गेटिंग टू मच मैसी, यू आर स्क्रबलिंग टू मच, या इन बिटवीन पैराग्राफ्स में आप स्पेस नहीं छोड़ रहे हो, इट इज गेटिंग टू मोनोटोनस टू रीड योर आंसर, you have to work on that. Presentation is very, very important. I have been emphasizing from day one only that ultimately there will be professors who are about to get retired, who are in their 50s, like me, will be having big, big specs, glasses. So work on your presentations. जितना अच्छे से साफ लिखोगे, फ्लो चार्ट्स बनाओगे, उतना उनके लिए easy रहेगा. And it catches their eye. So definitely they are going to give the marks. ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे पेज मार्किंग होगा. पेज मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा. They are going to read it. What if tomorrow somebody is asking PSC, look, show me my paper, I want to see कि आपने मार्क्स कैसे दिए. So there should be a rational कि आपको कम मार्क्स क्यों मिले या ज्यादा मार्क्स क्यों मिले. So these things are very important. आप में से बहुत सारे जो है पहले ही हमारे प्रोग्राम के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम आपको कंटेंट एक जगह दें, कंटेंट को सिंप्लीफाई करके दें, और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उस हिसाब से आपको ट्रेन करें, उस हिसाब से आपको रेडी करें एग्जाम के लिए. वी हैव बीन सेइंग दिस. नाउ देयर हैव बीन सम रूमर्स, इसको थोड़ा सा एड्रेस करेंगे इस चीज को. देयर हैव बीन सम रूमर्स गोइंग कि कुछ बंदे या कुछ बच्चे स्टे लाना चाहते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस को. I was reading the order, I was reading the notification जो आपका लिखा गया है, like in the जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सर्विस रूल यानी कि SRO जो उसका होता है, उसमें क्लियरली मेंशन है द एग्जामिनेशन का पहले प्रिलिमिनरी पार्ट होगा, फिर मेन पार्ट होगा, फिर इंटरव्यू पार्ट होगा. ब्रेकअप दिया गया, इसमें इतने मार्क्स है, इसमें इतने मार्क्स है. बट इन योर एग्जामिनेशन it is clearly mentioned that this is going to be two-stage examination only. जिस पे in the main part you are going to have 6 papers of 100 marks each. Then you are having 100 marks interview. It is written clearly. Now there have been a convention, there have been a precedent wherein PSC has sometimes conducted preliminary examination also. The last जो AD का एग्जाम हुआ था शायद 2013-14 में, तब preliminary examination हुआ था, जिसकी वजह से कोर्ट में ड्रैग चला गया आपका एग्जामिनेशन, जो शायद 2-2.5 साल में वो सारा प्रोसेस फिर कंप्लीट हुआ. लेकिन ये पीएससी का खुद का प्रेरोगेटिव है. वो अगर उनको लगेगा नहीं हमें डायरेक्ट मेन एग्जाम करेंगे, उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल है, दैट्स गुड. एक एस्पिरेंट ने मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज किया कि फ्यू आर सेइंग कि मेन एग्जामिनेशन में वो जज नहीं कर पाएंगे. आई डोंट नो व्हाट रैशनल इज दैट कि मेन एग्जामिनेशन में वो पूरी तरह हमें नहीं पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा है. When the nature of the examination in itself says कि ये descriptive examination होगा, ये MCQ एग्जाम नहीं होगा. That means they are trying to see, क्योंकि कल को जब असिस्टेंट डायरेक्टर कोई बनेगा उसको कभी ना कभी लेटर भी तो लिखना पड़ेगा ना डायरेक्टर साहब को या किसी डिपार्टमेंट को. इंग्लिश भी चेक होगा, प्लस आपका प्रेजेंटेशन भी चेक होगा, हाउ यू आर फ्रेमिंग द थिंग्स, प्लस आपका डिडक्शन, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन में आप कैसे डिडक्ट करके कुछ चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हो. दैट इज ऑल्सो द नेचर ऑफ द एग्जाम. ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है. यस, एनालिटिकल स्किल डेफिनेटली हर एग्जाम का नेचर है. दे आर गोइंग टू चेक योर एनालिटिकल स्किल, आपको दिया गया. लेकिन अब आप देखोगे ना जो पेपर पूछे गए ना, वो पेपर बिल्कुल सिंपल पूछे गए. नॉट दैट यूपीएससी या केएस लेवल के पेपर नहीं पूछे गए जहां पे आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे. यहाँ पे यूजुअली डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे गए कि व्हाट इज ऑफिस मैनेजमेंट, इसके फंक्शंस क्या है, या इवन जनरल इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए. तो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि क्या क्या आगा, क्या क्या आने वाला है. वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल आल्सो. तो थोड़ा सा बिट हार्डर भी हो जाएगा, वी आर स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. नाउ विथ अस देयर आर लाइक जनरल स्टडीज में कुछ टॉपिक्स है जो कवर करने हैं. नाउ बिकॉज एग्जाम अब क्लोज आ रहा है, तो वी हैव टू आल्सो बकल अप नाउ. जनरल स्टडीज में कुछ चीजें हैं मेरी एंड से जो आपको हमें देना है.
प्लस फ्यू एसेज, आई वांट टू ऐड मोर एसेज, 5-6 और एसेज को हम ऐड और करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। तो ये जो 2-3 चीज़ें मेरे पास है, हम उनको ऐड करेंगे और साथ में जो अब हम टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उस टेस्ट सीरीज़ के अगले दिन, एवरी डे आफ्टर द टेस्ट सीरीज़, कि आज जब 28 को टेस्ट सीरीज़ हुआ, 29 को हम जो-जो बच्चे आंसर लिखेंगे, इफ वी आर इन अ पोजीशन टू इवैल्यूएट एट लीस्ट 10 टू 12 आंसर्स और 10 टू 15 आंसर्स इन अ डे, हम अगले दिन उन आंसर्स पे डिस्कशन करेंगे। वी विल कीप अ शॉर्ट सेशन 30-30 मिनट्स का। 2-3 आंसर्स को उठाएँगे जो हमें लगेंगे कि ठीक है, ये अच्छा है, ये आपके लिए एक बेंचमार्क हो सकता है। दिस कैन बी अ बेंचमार्क फॉर यू, कि इस हिसाब से आप लिखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। हम उस बच्चे का, अगर उसने नाम लिखा है, तो नाम को हम हाइड करेंगे, सो दैट कि आप जो ये ग्रुप है, आपस में पीर लर्निंग से एक-दूसरे से सीख जाओ। लेट्स से कि अगर इंग्लिश में कोई एसे अच्छा लिख रहा है, उसका फ्लो एसे का अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, लेटर का उसका फॉर्मेट अच्छा है, इवन कि जो आपका प्रोवर्ब है उसने अच्छे से इसको डिकोड किया है, प्लस अच्छे एग्जांपल्स के साथ उसको लिखा है, तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट कि देखिए ये पेपर ऐसा आया था, इसमें इस बच्चे ने ऐसा-ऐसा लिखा था, यू हैव टू आल्सो सी लाइक दैट। और उसके बाद हम उसके पेपर को, उसका नाम हटाएँगे, अगर उसको बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी इश्यू या कोई बंदा नहीं चाहता कि उसको नज़र लगे, तो उसका नाम हाइड करेंगे, सो दैट आप भी उससे एट लीस्ट आपको मदद मिले। कि नहीं, यहाँ पे अगर ये ऐसा लिख रहा है, ये जब सोच रहा है कोई ऐसे, तो कैसे सोच रहा है, और जब मैं लिख रही हूँ या जब मैं लिख रहा हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट, दिस वी आर गोइंग टू डू। ताकि आपको अब इसके साथ-साथ हम उस स्टेज के लिए तैयार करें, ताकि जहाँ पे आप थोड़ा-सा चीज़ें 5% 10% चीज़ें आप याद भी करो। क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में अगर आपके पास अच्छे-अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे-अच्छे कुछ 8-10 पॉइंट्स हैं, उन्हीं को आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। प्लस मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, या मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप यूट्यूब से देख सकते हो, जिसमें जो क्वेश्चन्स के डायरेक्टिव्स हैं ना, उसको एक बार ज़रूर देखना। आंसर राइटिंग जब स्टार्ट करोगे कल को, क्वेश्चन्स के जो डायरेक्टिव्स होते हैं, यू विल हैव डिफरेंट डायरेक्टिव्स, ठीक है? आपको डिस्कस कभी बताया जाएगा, आपको इवैल्यूएट बताया जाएगा, कभी कोलैबोरेट बताया जाएगा, कभी क्रिटिकली एनालाइज़ बताया जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन्स के इधर पहले या क्वेश्चन के बाद में लिखा होगा, ठीक है? कमेंट बताया होगा कभी, उनको एक बार समझना, उनमें डिफरेंसेस क्या-क्या है? डिस्कस कभी होगा, ठीक है? ये अलग-अलग आपके जो वो क्वेश्चन्स के जो आपको जो आएँगे, ये चीज़ें जो पैराफ्रेज़ में आएगा, ठीक है? प्रीफिक्स में आएगा या सुफिक्स में आएगा क्वेश्चन के, वो सॉरी, इनको डायरेक्टिव्स हम कहते हैं, ठीक है? इन डायरेक्टिव्स को आप एक बार ज़रूर कहीं से देखना। तो मैं बोल रहा था, क्वेश्चन्स के जो डायरेक्टिव्स हैं, उनको एक बार ज़रूर और ज़रूर देखना कहीं पे। नॉट ओनली देखना, बल्कि अगर हो सके, उनको लिख के रखना, ठीक है? 5-10 डायरेक्टिव्स हैं, उनको लिख के रखना, उनकी डिफरेंसेस क्या है? कि जब डिस्कस वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसके में क्या मैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पक्ष लिख पाऊँगा? अगर क्रिटिकली एनालाइज़ आ रहा है, तो उसमें क्या सिर्फ़ मुझे सिर्फ़ नेगेटिव पॉइंट्स हाइलाइट करने हैं, या दोनों चीज़ें करने हैं? कमेंट में मुझे किस चीज़ का ख़्याल रखना है, ठीक है? इनको ज़रूर रखना, क्योंकि डायरेक्टिव्स अगर आप नहीं समझ पाओगे, अगर आपको कल को क्वेश्चन आता है और डायरेक्टिव में आपने सिर्फ़ एक ही पक्ष लिया होगा, यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे दोनों चीज़ें बता रहा था, बट यू हैव ओनली एम्फसाइज्ड ऑन वन थिंग, तो कहीं न कहीं उसके मार्क्स कट जाएँगे। दिस इज वन थिंग, क्योंकि नाउ यू आर हैविंग मोर देन 40 डेज प्रिसाइजली। मेहनत कीजिए, एग्जाम बराबर उसी टाइम पे होगा, नो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा ना होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 6 ऑफ अगस्त से आपका एग्जाम होगा, विद इन 3-4 दिन में ये खत्म करेंगे 6 पेपर्स, या 6 दिन में, या तो एक दिन में 2-2 पेपर भी रख सकते हैं। वो हम बाद में, जब एक डेट शीट आएगा, पूरी तरफ से एक आपका डेट शीट आएगा कि कब क्या है, वो हम बाद में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपना प्रेज़ेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हमारा जो अ, टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है, वो आप देख पाओगे एक बार दोबारा, ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए, इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना एज़ सच, लाइक ये डेट हमने जो दिया है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे,
We'll start with general English, then we will have general studies, then we will have economics, statics, office management, and business management. Okay, this is round one till 17th of July. By the time you will be in a better position to at least have 70 to 80% of your syllabus covered with the good revision also. Then in round two, we are going to again go with general studies, economics, office management, business management, and in the end, we are going to have general English. This is how we are going to have this test series from next 40 days. इसका शेड्यूल हमने बनाया है ताकि चीज़ों को हम कवर करें। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स 1 हो गया, इकोनॉमिक्स 2 हो गया, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, या आपका स्टैटिक्स हो गया, नहीं लिया बिकॉज वी डोंट हैव एक्सपर्टीज फॉर दैट। वी डोंट वांट टू ब्लफ ऑन दोज थिंग्स जिनमें हमें एक्सपर्टीज नहीं है, बिकॉज जिनमें मुझे एक्सपर्टीज है, एटलीस्ट इवन स्टैटिक्स में मेरा उतना एक्सपर्टीज नहीं है, बट स्टिल आई टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, इवन इकोनॉमिक्स सम पार्ट्स। But when it comes to those four papers, general English, general studies, office and business, sure shot, we are good in that. We are going to provide good guidance plus good questions also. एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस प्लस अच्छे स्टैंडर्ड की इवैल्यूएशन भी हम उनको करके देंगे। Anybody having questions in that? क्योंकि ये हम सेशन शॉर्ट ही रखेंगे, we will not take much of your time, ताकि आप चीज़ों को समझो। किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो बता सकता है। सर इसमें ज्योग्राफी के टेस्ट्स इंक्लूड होंगे, जो J&K का ज्योग्राफी वाला पार्ट है? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज में जो आपका आएगा, जीके पार्ट में जो भी चीजें आएगी उसमें वो इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल ठीक है सर, ओके ओके, तो थैंक यू। जीके पार्ट में ज्योग्राफी कवर होगा, ठीक है, वो हम वहां से करेंगे। किसी और को डाउट? एंड सी वी आर ऑलमोस्ट जो जनरल स्टडीज में हमारा करंट अफेयर के कुछ कुछ टॉपिक पेंडिंग है। एक मैं थोड़ा सा एक्चुअली घर में मैं थोड़ा बिजी हो गया काम में, कि विद इन डेज इंशाल्लाह, शायद कल परसों मुझे जाना पड़ेगा श्रीनगर टू मीट सम पीपल। We will have all those important topics from January till June in one place, और उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है कंटेंट, वो भी मैं कोशिश करूंगा ताकि वो आपको, मैंने ऑलरेडी आपको विजन का मंथली मैगजीन का एक छोटा सा समरी प्रोवाइड किया है, कोर ग्रुप के मेंबर्स को वो ऑलरेडी मिला है, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मंथ के वो वहां पे मिला है, ताकि यू कैन एटलीस्ट राइट ऑन दोज इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कवर्ड जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कवर किया है, वहां से पॉलिटी का हमें रह गया है, यस वो मुझे याद है, पॉलिटी का हमें क्वेश्चंस देने हैं तो हमें सॉर्ट आउट करना है। और प्लस बाकी जो भी आपका प्रोब है, लेटर्स है, और इवन की आपका जो प्रेसिज है वो मैंने 5-8 प्रेसिज और भी रेडी रखे हैं। इन द मीन टाइम आई विल शेयर देम आल्सो। ओके सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, साइंस एंड टेक के रिलेटेड, थोड़ा अगर आप वो भी मतलब हमें गाइड कर दें, क्योंकि बिल्कुल, कुछ साइंस एंड स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका साइंस। जी 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 सर। सी इन द मंथली मैगजीन में जो भी आपका साइंस एंड टेक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, आई रिमेम्बर मैंने एक बार वो ऑलरेडी शेयर किया है, ठीक है, तो उसको दोबारा शेयर करेंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इसरो का है, गगनयान मिशन है, प्लस मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है कुछ, वो वहां से कवर होगा। एंड प्लस जीके में देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, आपके 3 ही क्वेश्चन रहेंगे जो 10 मार्क्स के रहेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन 5 के रहेंगे, कुछ 3 के रहेंगे, कुछ 1.5 के रहेंगे, ठीक है। तो इसमें एज सच उतना आपको सिर्फ जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में अगर सरफेस लेवल का नॉलेज कम से कम आपको 2 या 3 लाइन उसके बारे में पता है, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट गुड मार्क्स व्हेन इट कम्स टू 5 वाला क्वेश्चन, 3 वाला क्वेश्चन और 1.5 वाला क्वेश्चन। जी सर, जी 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 सर, ओके ओके सर। यस, किसी और को क्वेश्चन है इसके बारे में? तो वी हैव रिकॉर्डेड द सेशन आल्सो सो दैट हमारे जो एस्पिरेंट्स नहीं देख पाए वो देख सके। मतलब जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, द प्राइस ऑफ द टेस्ट सीरीज इज 1000 रुपीज, एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन आवर कोर्स, जिन्होंने तब पेमेंट किया है,
ऑफ लाइक 3000 जो कोर्स का टोटल था, जिसमें 6 किताबें आपके इन्वॉल्व इंक्लूडेड थी, with your office management, business management, and 4 compulsory papers. So they don't need to pay again. But rest जिन लोगों ने तब शायद half of the payment किया था only for that thing, तो they have to pay the remaining amount. ठीक है? And plus those who have some issues as of now, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, तो उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है. वी आर गोइंग टू एंटरटेन देम. उनका जो आंसर्स होंगे, वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट देम. वो लूज ना करे कंपटीशन में. वो बिला without any hesitation they can send their copies. We will evaluate them the way we are evaluating other students. As such, यानी मैंने day one से बोला है, I'm here to help you guys. I'm not here as a capitalist, I'm not here as some coaching wala person who जिसके लिए it's all about money and all. I'm here. We have been providing a lot of things free of cost. We have been guiding freely, and we will keep doing it, because knowing that situation in Jammu Kashmir is not that much good. Aspirants are not that financially viable, and people have been waiting for jobs for 2, 3, 4 years. So we do understand that. So that's why we want you guys to at least get a job, to get this job, and we are there to facilitate in that. Sandeep ji ka shayad question hai. We'll go to, sir, share some more expansion areas and letter of English part. Yes, letters we are going to share. We will do it. Definitely we are going to do it within days. But just give me a few more days, we are going to do it. Letters plus जो ideas है आपके expansion ideas जो आपके, वो already I think we have given them. Probes तो I have given already 25, 26. मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा होगा, but still we'll try to do more. तो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट जो हमारे थे वो वही है जो हमारे कोर्स में थे. वी आर इन द कोर्स जो मैं देख रहा हूँ. सो you are having a regular interaction with me via WhatsApp regularly. Your messages come, I try to answer them as quickly as possible. So now from 28 we are going to start test series. It will be a full length test series, and now we are going to start from 28. So I want you all to write, because जो हमारा डेली का टेस्ट सीरीज होता था, जो हमारा वीकली टेस्ट सीरीज इससे पहले होता था, लॉट ऑफ यू वर नॉट राइटिंग इट. लाइक देयर वर फ्यू जिन्होंने पहले लिखा था, बाद में उन लोगों ने नहीं लिखा. तो आई वांट यू टू राइट. अल्टीमेटली एग्जाम आपके राइटिंग का ही है. रिमेंबर, इंटरव्यू में 100 मार्क्स ही सिर्फ है. मेजॉरिटी ऑफ योर मार्क्स, दैट 600 मार्क्स, इज ओनली हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आइडियाज. आई हैव बीन सेइंग इट, आई एम सेइंग अगेन. एग्जामिनर के लिए आप सिर्फ एक रोल नंबर हो. वो रोल नंबर क्या लिखता है, एग्जामिनर आपको उसी पे जज करेगा, नॉट आपको कितनी नॉलेज है पीछे. तो सो मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. एग्जामिनर को ये बता दो कि नहीं, ये जो रोल नंबर है ये जानता है, इसको प्रेजेंटेशन अच्छा है, एंड ये अच्छे से लिख पा रहा है. आंसर राइटिंग कैसे करो? देखिए, वंस यू स्टार्ट रीडिंग सम टॉपिक एंड ऑल, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, PYQ होगा या कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है, यू हैव टू ट्राई टू राइट देम. आपको जैसे हम क्लास 9, 10th में पूरा याद करते थे, पूरा का पूरा याद तो नहीं रहेगा. आपको बस बेसिक आइडियाज, जो भी इंपॉर्टेंट 5-6 चीजें रहेंगे, उसमें उनको याद रखने की कोशिश करना है. यानी कि टेक्निकल जार्गन जो भी रहेगा, प्लस आइडियाज हो गए, प्लस आपका डेटा हो गया, प्लस आपका कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है उस आंसर के रिलेटेड, उसको सिर्फ आपको इलाबोरेट करना है. और जब तक ना आप एक बार पेन नहीं चलाओगे ना, योर वर्स्ट आंसर ऑन डे 1 विल बी द बेस्ट आंसर व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जामिनेशन. बस पेन एक बार चलाना है. I have been saying why I am encouraging for answer writing from day 1 is that कि अगर किसी को ये लग रहा है ना कि वो सिर्फ आज पढ़ेगा और एग्जाम में अच्छा आंसर लिखेगा, तो वो मिस्टेकन है. चाहे वो कोई भी कितनी भी बड़ी तोफ हो, रिमेंबर दिस टाइम. चाहे वो कितना भी नॉलेजेबल हो, वो चाहे कुछ भी उसने किया होगा, चाहे वो क्लास का टॉपर होगा, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होगा, ये गेम और वो गेम अलग है. हम भी यूनिवर्सिटी लेवल पे एक टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर्स की मार्किंग करते हैं. वहां का लिखना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लिखना बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं. सो रिमेंबर वन थिंग, कि गंदा आंसर आज लिखोगे, 40 दिन के बाद वही आंसर अच्छा होगा. 40 दिन अभी भी है. तो लिखना है, पेन को चलाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है. पेन को चलाना सीखे ताकि चीजें इजी हो जाए. इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पेपर्स में जो भी सिलेबस दिया गया है, उस जो स्पेशली जो जनरल इकोनॉमिक्स है आपका,
उसमें जो क्वेश्चंस हमने जो देखे पीवाईक्यू से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे, और उसके हिसाब से ही हम नए आंसर राइटिंग का जो टेस्ट सीरीज़ है वो शेड्यूल बनाया है। और स्टैटिस्टिक्स का आपको ये याद रखना है कि आपका 50% पेपर आपका थ्योरी रहेगा, 50% पेपर आपका रहेगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएँगे। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे मीन, मीडियन, मोड हो गया, जो आपका रिग्रेशन हो गया, कोरिलेशन हो गया, जो भी वहाँ पे दिया गया प्रोबेबिलिटी हो गया, जो भी सिलेबस में दी गई चीज़ें उनको कम से कम प्रैक्टिस करना है। कैन वी प्रिपेयर इन 40 डेज़? डेफिनिटली यू कैन प्रिपेयर इन 40 डेज़। देखिए, आपको मटेरियल उधर-उधर से भटकना नहीं है। अगर आपका ऑफिस मैनेजमेंट और बिज़नेस मैनेजमेंट ऑप्शनल है, तो वी हैव प्रोवाइडेड दोज़ कंसाइज़ नोट्स। कंसाइज़ नोट्स को एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। प्लस जो हमारा इससे पहले टेस्ट सीरीज़ हुआ था, उसका कंटेंट एनरिचमेंट भी हमने प्रोवाइड किया है। तो एक जगह पे आपको सारा मिलेगा चीज़ें, उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। थिंग्स आर गोइंग टू बी गेट वेरी ईज़ी। तो आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। तो हम इस सेशन को अभी कंक्लूड करेंगे। इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर आई डोंट नो कि आपका जो आप ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो देखना पड़ेगा मुझे। देखिए, जीएस के नोट्स आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ग्रुप्स में वो डाले ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें, और जो भी अगर आपको कुछ रहेगा ग्रुप में से या उमर सर को या मुझे आप मैसेज कीजिए, वो बाकी चीज़ें भी हम शेयर करेंगे। वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट 40 डेज़ पे अब हम यहाँ पे मटेरियल मटेरियल नहीं भेजेंगे। हम बस जिसको भी जो गाइडेंस चाहे वो विल प्रोवाइड, जो भी चीज़ें रहेंगे वी विल वर्क ऑन दैट, वी विल ट्राई टू गिव गुड कंटेंट। विल ट्राई बिल्कुल। ये प्रिलिमिनरी का क्या सीन है? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम तो मुझे नहीं लगता शायद होगा, बिकॉज़ अभी कुछ बच्चे शायद मे बी वो इसीलिए बोल रहे थे शायद कि वो बाकी बच्चों को वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे। नाउ आई गेस कि शायद प्रिलिमिनरी का ऐसा कोई सीन नहीं है, ना कोई ऐसा कोई रूल में लिखा गया है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन इसका होगा। हाँ, बिल्कुल पॉलिटी ही पढ़ना है। जनरल स्टडीज़ में तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन 50% पेपर पॉलिटी से आया है, बार-बार आया है। अब देखिए 2 पेपर जो हमारे पास है 17 का, और शायद उससे पहले एक पेपर, मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो पॉलिटी से ही आए जनरल स्टडीज़ में। येस, वी विल शेयर, डोंट वरी, वी विल शेयर दैट। तो आई गेस वी विल नाउ क्लोज़ दिस सेशन एंड आप रिवाइज़ करते रहे। देखिए, लेक्सिटी की अब कोई गुंजाइश नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैं इंडिविजुअली नाम नहीं लूँगा जो अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट में अच्छा किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि लेक्सिटी की अब कोई गुंजाइश नहीं है। रिवाइज़ करते रहे। ये 40 दिन को जितना इससे पहले आपने मेहनत किया, बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ यू आर वर्किंग, उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए। और छोटे-छोटे नोट्स जो आपने बनाए होंगे, उनको रिवाइज़ कीजिए। जहाँ से भी आपको अच्छा कुछ कंटेंट मिल रहा है, कोई भी चीज़ मिल रहा है, चाहे आपको इंटरनेट से मिल रहा है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये फलाँ आंसर में अगर मैं ऐड करूँगा या ऐड करूँगी तो इससे मुझे 1 या 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो डेफ़िनिटली उसको ऐड कीजिए। रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहिए। जो भी आपको चीज़, कोई भी केस स्टडी अगर आ रहा है ना, तो उसको कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं नई गवर्नमेंट ने कोई इंट्रोड्यूस की, ये मुझे फलाँ जगह पे काम आ सकता है, तो उसको छोटे नोट्स बना के कहीं पर रख ही लीजिए और बाद में उसको ऐड कीजिए। देखिए, आपको हर क्वेश्चन में इम्तियाज़ साहब इंट्रोडक्शन तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। पहले तो क्वेश्चन कुछ पूछेगा, एक्सप्लेन व्हाट लेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है? एक्सप्लेन तो आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताओगे, उसके बाद एक्सप्लेन करोगे क्या-क्या लेड हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया में आया, क्या-क्या स्कार्सिटी ऑफ फूड था, और क्या था? जो बाकी चीज़ें जो भी इसके रीज़न होंगे, वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे फिर। उसके बाद फिर आप एक कन्क्लूजन दोगे कि हमने उसमें क्या किया, प्लस और चीज़ें क्या कर सकते हैं, दोज़ थिंग्स यू कैन डू। So I wish you guys all the very best. We are going to wind up this session now. इसका रिकॉर्डिंग हम कल या परसों डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, सो दैट जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया वो उसको देख सकते हैं। आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच।